Hi everyone, welcome to my channel Charan's Finance. So friends, in today's world, all the global financial institutions like banks, insurance companies, brokerage companies, mutual fund companies, wealth management companies, digital lenders, credit card companies, all these companies are going through a digital transformation journey. That means all these companies they want to reach their customers online. So यहाँ पे कस्टमर को ब्रांच ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. They can avail all the financial services sitting at home through online. Now, there are technology providers or digital solutions providers which help these global financial institutions for their digital transformation. So, the company that we want to discuss today, that is Intellect Design Arena, तो ये एक ऐसा कंपनी है जो डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू दिस ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So they provide technology stack, products and platforms to these global financial institutions. So there are a lot of IT companies which are helping financial institutions for their digital transformation. But the specialty about this company is they are completely focused on financial sector. They don't provide technology or products to any other sector. They are fully focused on financial institutions. So the investors which are not interested much about financial sector, so they can invest in such a company which is acting as a technology provider to the financial institutions. It can act like a proxy to the financial company. Now let's talk about this company's technology, products and platforms. So this company's technology is completely artificial intelligence and machine learning based. They have cloud based technology, मतलब ये on premise software नहीं बेचते हैं. And they have hyper scale, means you can easily scale this model. They have corporate and retail banking operating system. They are into API based medium data exchange. API मतलब होता है application programming interface. So API is a technology through which you can exchange data between different applications. And also this company has intelligent document exchange method. So if I have to explain in a very simple language, this company has cloud ready API based modern technology platforms and products for the global financial institutions. टॉकिंग अबाउट दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स, मतलब ये कंपनी के पास हर एक प्रोडक्ट है जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब अगर बैंकिंग हो गया, कोर बैंकिंग फॉर दे हैव आईडीसी. देन इफ यू आर इनटू ब्रोकरेज कंपनी, दे हैव ए प्रोडक्ट फॉर ब्रोकरेज. एंड इफ यू आर इनटू डिजिटल लेंडिंग, अंडर राइटिंग, डिजिटल कार्ड्स, पेमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट. सो फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे हैव डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो दिस कंपनी हैज रेडी टू गो प्लेटफॉर्म. मतलब अगर कोई ट्रेडिशनल कंपनी है विच वांट्स टू गो डिजिटल एट ए गो, देन दे कैन अवेल दिस कंपनीज प्लेटफॉर्म सर्विसेज. मतलब कंप्लीटली प्लेटफॉर्म में आप ऑनबोर्ड करा सकते हैं. सो दे हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक आई क्रेडिट 360, कैश पावर, एक्सपोनेंट, जीईएम. सो दीज आर रेडी टू गो प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको क्लाइंट को ऑनबोर्ड कराना है एंड दे विल बी फुल्ली डिजिटल. ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी का रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. तो देखिए, ये कंपनी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है. तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू आता है, जो लाइसेंस एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है. जब सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू होता है, मतलब जब आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आपको रिकरिंग रेवेन्यू आता है. मतलब हर मंथ या हर क्वार्टर या एवरी ईयर आपको क्लाइंट से रेवेन्यू आता रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई एडोबी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको यहाँ पे मंथली या क्वार्टरली पे करना रहता है. तो विच इज़ ए रिकरिंग रेवेन्यू फॉर द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर. यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लंबा रेवेन्यू देगा. फॉर ए लॉन्ग टाइम क्लाइंट से रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा. यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखें, FY15 में इनका जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू था वो जस्ट 33% था. बट एज ऑफ Q3 FY22 ये बढ़ के हो गया है 57%. मतलब टोटल रेवेन्यू का 57% सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है. Now let's talk about this company's few recent deal wins. So in Q3 FY22, this company had a deal with 10 new customers. And also in Q3 FY22, 11 global financial institutions went live with their digital products. Now ये जो डील विंस हुआ है Q3 FY22 में, ये कोई पर्टिकुलर रीजन से नहीं आया है. सो इनका जो क्लाइंट्स है, दे आर अक्रॉस US, यूरोप, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड ऑल्सो इन अफ्रीका. मतलब इनका जो क्लाइंट बेस है कोई पर्टिकुलर रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इनका क्लाइंट बेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल है. फ्यू रिसेंट डील विंस बहुत ही एक्साइटिंग है जो रिसेंटली हुए हैं. तो 11 अप्रैल को दिस कंपनी हैड ए मेजर डील विथ VP बैंक, which is a Vietnam based banking company. In March 23, they had a deal win with a Qatar headquartered bank. And also in 4th March
2022 दे हार्ड अ डील विन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई के साथ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एज पर द मैनेजमेंट विच इज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा और यहाँ पे उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू आने का चांसेस है। So friends, this was all about this company's technology, products, platforms and recent deal wins. Now let's go through this company's financials. So as of today, this company has a market cap of 12,353 crore. Last 5 years PAT CAGR is 62%, which is very rapid growth. As of Q3 FY22, this company is debt free and also they have a cash of around 431 crore. Last year ROC was 21%, ROE was 22%. मतलब this company has very highly profitable metrics. Now if we talk about valuation, right now this company is trading at 36 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो देखें विच इज कमिंग लाइक लेस देन 0.5, तो जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका ग्रोथ रेट से कम होता है, दैट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर दैट स्टॉक और टू ऐड मोर. सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं कंपनी का बिजनेस मॉडल को समराइज करना चाहूँगा तो ये कंपनी एक क्लाउड बेस्ड एपीआई बेस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है टू द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और ये जो फाइनेंशियल कंपनीज का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, दिस इज नॉट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ये जर्नी मल्टी डेकेड्स के लिए चलता रहेगा. तो यहाँ पे ये कंपनी जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना है, इस कंपनी को काफ़ी फायदा होने वाला है. तो आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे, प्लस कंप्लीटली डिजिटाइज होने के बाद भी आपको रिकरिंग रेवेन्यू क्लाइंट से आता रहेगा. और कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है एंड दिस इज ऑल्सो बैक्ड बाई वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट. अगर आप इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिस्ट देखेंगे, देर आर वेरी प्रेमिनेंट पीपल एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल आर देयर इन द बोर्ड. सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी एंड आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर. तो मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. आई लाइक दिस कंपनी वेरी मच बिकॉज दे आर कंप्लीटली फोकस्ड on this financial institutions. So you guys can also study a lot about this company. So this was all about Intellect Design Arena from my side. I hope you guys liked my video. If you liked, do subscribe to my channel. I will come up with such exciting videos in the future as well. So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.